اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 پابندی کے ساتھ آپ چینل کی مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور آج رات اسی چینل پر 8:30 بجے لائیو بیان ہوگا جس کا بہت اہم عنوان ہے۔ پوری فیملی کے ساتھ آپ نے اس بیان کو دیکھنا اور دوستوں کو بھی اس بیان کے دیکھنے کی دعوت دینا۔ آج کے بیان کا عنوان ہے کہ مسلمانوں کی شادیوں پر فلموں اور سیریل کے اثرات۔ جی ہاں، آج کل مسلمانوں کی شادیاں نظر نہیں آ رہی ہے۔ نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن نبی کی سنت پوری شادی میں کہیں نظر نہیں آ رہی ہے، سب غیروں کے طریقے نظر آ رہے ہیں۔ پھر اس سے گھروں کا سکون کیسے ختم ہو رہا ہے، زندگیاں کیسے برباد ہو رہی ہے، گھروں میں طلاق جلدی جلدی کیسے واقع ہو رہی ہے، کیسے رشتے ٹوٹ رہے ہیں اور کیسا اللہ کا عذاب زندگیوں میں آ رہا ہے، ان تمام چیزوں پر بڑی اہم بات ہوگی۔ رات کا بیان آپ 8:30 بجے ضرور دیکھیے، اسی چینل پر لائیو بیان ہوگا۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت غزہ اور فلسطین کے حالات کو لے کر ہی آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ غزہ میں اسرائیلی آتنکواد اور اسرائیلی بربریت اور درندگی جاری ہے۔ گزشتہ کل 24 گھنٹوں کے دوران اور مزید 100 فلسطینی شہید کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں گزشتہ کل 24 گھنٹوں کے دوران مزید 100 فلسطینیوں کو مار دیا، شہید کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ 7 اکتوبر سے اب تک، یعنی گزشتہ کل 20 دسمبر تک، اب فلسطین میں شہید ہونے والوں کی مجموعی تعداد 19,600 یعنی 20,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ صرف ایک دن میں غزہ میں گزشتہ کل اسرائیلی حملوں میں تقریباً 100 فلسطینی شہید ہوئے ہیں اور سینکڑوں فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کو روکنے کے لیے مسودہ قرارداد پر ووٹنگ مؤخر کر دی گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات UAE کی طرف سے تیار کردہ قرارداد پر ووٹنگ پیر 18 دسمبر کو ہوئی تھی۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مسودہ قرارداد پر ووٹنگ گزشتہ
यानी 20 दिसंबर को कल मुतवक्के थी इजराइल और अमरीका सलामती कौंसिल की करारदाद में जंग बंदी की इस्तिलाह इस्तेमाल करने के मुखालिफ है। खैर, इस वक्त बरतानिया भी पूरे आतंकवाद पर उतर आया और बरतानिया ने भी इजराइल का साथ देना शुरू कर दिया और इजराइल से कहा कि हमास को चुन चुन कर मारे। लेकिन असल बात तो यह है कि हमास और मुजाहिदीन से इजराइल का मुकाबला हो ही नहीं रहा है, बल्कि इजराइल का निशाना फलस्तीन और फलस्तीन की अवाम है। और इजराइल ने अब तक जो 20,000 लोगों को मारा है वो सिविल सिटीजन्स, आम शहरी, और इन 20,000 में 9,000 तो बच्चे और 8,000 के करीब औरतें शामिल हैं। यानी इजराइल इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी और टेररिस्ट बन चुका है और इजराइल को साथ देने वाला उसका नाजायज बाप अमेरिका, बरतानिया वगैरह है। आइए नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने आ रही है कि आइंदा कल इंडिया अलायंस का हुकूमत के मुखालिफ मुल्क गिर एहतजाज होगा। मुअत्तल अरकान पार्लियामेंट के चैम्बर, लॉबी और गैलरियों में भी जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। यानी आप समझ सकते हैं कि मोदी ने हिटलर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, तानाशाह का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और अब तक के जितने कातिल, जालिम और तानाशाह आए हैं उन सब का रिकॉर्ड तोड़ दिया और मनमानी चलाई जा रही है। 141 के करीब 143 के करीब मेंबरान पार्लियामेंट सस्पेंड कर दिए गए हैं और उनका चैम्बर, लॉबी और गैलरियों में भी जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। लोकसभा सेक्रेटरीट का नया फरमान सामने आया है और गुज़िश्ता कल बकायदा गांधी जी के पुतले के सामने आकर तमाम सस्पेंड मेंबरान पार्लियामेंट ने आकर लोकतंत्र बचाओ का नारा लगाया, सेव डेमोक्रेसी का नारा लगाया और साफ तौर से ये नारे लगाए कि मोदी और बीजेपी ने जमहूरियत का और सेकुलरिज्म का कत्ल किया है और मोदी इस वक्त हिटलर और तानाशाह बन चुका है। खुदा करे कि मुल्क के अंधभक्तों को, गोबर भक्तों को ये बात समझ में आ जाए, अगर देर हो गई तो मुल्क तबाह हो जाएगा। आइए दिन बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, एक मुस्लिम क्रिकेटर मोहम्मद शमी, जिन्होंने अपनी कातिलाना गेंदबाजी का मुजाहिरा बकायदा मैच, फाइनल मैच में दिखाया था, हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के मायनाज तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मोहम्मद शमी को खेल का पुरवकार अर्जुन अवार्ड देने का फैसला किया गया है, जिसमें अर्जुन अवार्ड के लिए मोहम्मद शमी समेत 26 दीगर खिलाड़ियों के नाम शामिल है। इन सभी खिलाड़ियों को सदर जमहूरिया के जरिए राष्ट्रपति भवन में 9 जनवरी 2024 को मुनक्किद होने वाली अजीमुशान तकरीब के दौरान अवार्ड से नवाजा जाएगा। काबिल जिक्र बात यह है कि आलमी कप, इंटरनेशनल वर्ल्ड कप 2023 में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले मोहम्मद शमी का नाम हिंदुस्तानी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने नाम पेश किए जाने की आखिरी तारीख खत्म होने के बाद भेजा था। BCCI ने खुसूसी सिफारिश के साथ मोहम्मद शमी का नाम वजारत खेल के पास भेजा था, जिसे वजारत खेल ने भी मंजूर कर लिया था और अब मोहम्मद शमी का अर्जुन अवार्ड देने का ऐलान भी हो गया है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मरकजी वजारत बराए खेल ने कौमी अवार्ड के लिए जिन लोगों को मुंतखब किया है उसमें बकायदा खेल रत्न के लिए चिराग का नाम भी सामने आया है। ऐसे ही एक मुस्लिम बेटी नसरीन को खो खो और मोहम्मद हिसामुद्दीन को बॉक्सिंग के लिए अवार्ड तय किया गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि हमारी बेटियां और हमारे मुस्लिम बच्चे मुल्क का नाम इस तरह भी रोशन कर रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मैंने वीडियो बनाया है। हाँ, वहां मेंबरान पार्लियामेंट बैठे थे, मैंने वीडियो बनाया है। ये बयान राहुल गांधी का सामने आया है। नायब सदर की तौहीन का मामला गरमाया हुआ है। राहुल गांधी की तरफ से बयान सामने आया। राहुल ने कहा है कि तौहीन किसने की और कैसे की। अरकान पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में बैठे थे, मैंने उनका वीडियो शूट किया। हमारे 150 MPs को बाहर कर दिया गया, लेकिन मुल्क की गोदी और खरीदी हुई मीडिया में इस पर कोई बहस नहीं। 150 मेंबरान पार्लियामेंट को बाहर कर दिया गया, लेकिन मुल्क की रखेल और बेशरम मीडिया को शर्म नहीं कि 150 मेंबरान पार्लियामेंट बाहर कर दिए गए, मगर मीडिया पर इस पर कोई बहस नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी पर कोई बहस नहीं, राफेल और बेरोजगारी पर कोई बहस नहीं। कांग्रेस लीडर ने दावा किया कि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में चूक के पीछे की वजह
बेरोजगारी और महंगाई है। सिक्योरिटी चूक के वाकये के बारे में पूछे जाने पर राहुल गांधी ने हफ्ते को सहाफियों से बातचीत की और कहा कि लोकसभा इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से गुजरात कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडरों के साथ मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी में चूक हुई है, लेकिन ये क्यों हुई? सबसे बड़ा मामला बेरोजगारी का है, जिसकी वजह से पूरा मुल्क अफरा तफरी का शिकार है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों की वजह से हिंदुस्तान के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। इस वजह से नौजवान भी परेशान हाल पार्लियामेंट में घुस गए हैं। इससे अंदाजा लगाए कि मोदी ने बेरोजगार जवानों का कितना बुरा हाल किया है। अगले दिन बड़ी खबर आ रही है, जी हाँ, नायब सदर जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का मामला, जिसमें टीएमसी के रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और बीजेपी अरकान ने नायब सदर धनखड़ की तौहीन की सख्त मजम्मत की है। वहीं पर नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि वजीर आजम ने नायब सदर के ओहदे का मजाक बनाने पर दुख का इजहार किया है। खैर, लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने मुल्क का मजाक बना दिया है, मुल्क की जनता का मजाक बना दिया है, पढ़े लिखे बेरोजगार जवानों का मजाक बना दिया है। पढ़े लिखे जवानों को मोदी पकोड़े तलने का मशवरा देता है। मोदी ने जनता का मजाक बनाया है, मोदी ने मुल्क का मजाक बनाया है। तो जाहिर बात है कि लोग गुस्साए हुए हैं और गुस्से में लोग और नौजवान अब पार्लियामेंट में तक घुस रहे हैं, फिर भी मोदी को गैरत और शर्म नहीं आ रही है। नाज़रीन, महाराष्ट्र के यवतमाल से बड़ी दर्दनाक खबर आ रही है कि एक दामाद ने ससुराल वालों का सफाया कर दिया और जिन लोगों को मारा है उन महलूकीन में मरने वालों में सास, ससुर, 2 साले और बीवी शामिल हैं। यानी इस तरीके से 5 लोगों को दामाद ने मार दिया और बताया जा रहा है कि उसे बीवी के किरदार पर शक था। यवतमाल जिला में एक पागल दामाद ने पूरे ससुराल के खानदान का सफाया कर दिया। पहले उसने बीवी और साले पर तेज धारदार हथियार से हमला किया, जिससे दोनों मौके पर ही दम तोड़ गए। उसके बाद उसने अपने ससुर, दूसरे साले, फिर सास पर भी हमला किया। हमले में ससुर और साले ने भी दम तोड़ दिया, जबकि सास शदीद जख्मी हो गई। बुध को इलाज के दौरान सास की भी मौत हो गई। बैक वक्त होने वाले 5 कत्ल का यह मामला इस वक्त महाराष्ट्र में मौजूए बहस बना हुआ है। यवतमाल के इलाके में जहां यह वाकया पेश आया वहां खौफ, हिरास का और डर का माहौल है। बताया जा रहा है कि बीवी के किरदार पर शक की वजह से ऐसा झगड़ा हुआ कि गोविंद वीर चंद पवार नामी शख्स ने पहले अपनी बीवी रेखा पवार और साले ज्ञानेश्वर पर हमला किया, जो खेतों में काम कर रहे थे। उसके बाद घर आने के बाद ससुर पंडित घोसले, दूसरे साले सुनील घोसले और सास पर भी हमला कर दिया। दामाद गोविंद वीर पर चंद पवार के हमले की वजह से बीवी रेखा गोविंद पवार यानी एक ही खानदान के, एक ही फैमिली के 5 लोग मौत के घाट उतर गए। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेद सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र के अमरावती से भी बड़ी दर्दनाक खबर आ रही है कि घर के 6 अफराद को गाड़ी से कुचल दिया। घर के 6 अफराद को गाड़ी से कुचल दिया। पुरानी दुश्मनी का शाखसाना बताया जा रहा है। इन 6 अफराद में से 3 की तो मौत हो गई और 3 की हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। न्यूज पोर्टल से मिली खबर के मुताबिक महाराष्ट्र में रोजाना जराइम और क्राइम बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी दौरान फिर दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है। महाराष्ट्र के अमरावती जिला के नाचुना गांव में पुराने तनाजे पर, पुराने झगड़े पर एक ही खानदान के 6 अफराद पर गाड़ी चढ़ा दी, कार को चढ़ा दिया। इन 6 अफराद में से 3 की मौत हो गई, जबकि 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस की जानिब से दी गई मालूमात के मुताबिक गांव के रहने वाले चंदन नामी शख्स ने इस वारदात को अंजाम दिया है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। धुलिया शोलापुर हाईवे, बड़ी दर्दनाक हादसे की खबर है कि धुलिया शोलापुर हाईवे पर खड़े एक कंटेनर में कार जा घुसी, 3 लोगों के टुकड़े टुकड़े हो गए।
जालना जिला के अनबाद ताल्लुके के अंकुश नगर में धुलिया शोलापुर हाईवे पर यह खौफनाक हादसा पेश आया। पुल पर खड़े कंटेनर को पीछे से आने वाली तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिसमें कार में सवार 3 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 2 मर्द और एक 10 साल लड़की शामिल है। हादसा इतना खतरनाक था कि कार का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया और 3 लोगों के टुकड़े टुकड़े हो गए। नज़र इस वक्त एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि गुज़िश्ता कल रियासत महाराष्ट्र के जालना जिला के तहसील भोकरदन का एक गांव है दानापुर में एक मदरसा है, बेटियों का मदरसा हलीमा सादिया लिल बनात। जी हाँ, गुज़िश्ता कल उसका सालाना प्रोग्राम था और मदरसे की जानिब से इलाके के तमाम ही मदारिस की बच्चियों के लिए एक मुसाबका मुनक्किद किया गया था, इस्लामी क्विज़ और इस्लामी मालूमात और बुनियादी दीनी मालूमात को लेकर। इस प्रोग्राम की सदारत मुल्क के मशहूर आलिम दीन खादिमुल कुरान वल मसाजिद वल मकातिब मदारिस हजरत मौलाना अय्यूब साहब नदवी भटकली ने इस प्रोग्राम की सदारत फरमाई और इस प्रोग्राम में मुक़र्रिर खुसूसी के तौर पर मुझे खुद बुलाया गया था। गुज़िश्ता कल इलाके के सैकड़ों हजारों लोगों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। तकरीबन 1000 के करीब इलाके की औरतें भी इस प्रोग्राम में शरीक रही। दिन भर ये दीनी मालूमाती प्रोग्राम चलता रहा और बहुत ही अहम प्रोग्राम रहा और रात को आखिर में तकरीबन 10 बजे मेरी तकरीर शुरू हुई और 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक 1 घंटा मुल्क के मौजूदा हालात और इस्लाह मुआशरा, बच्चों की इस्लामी दीनी ईमानी तरबियत कैसे करें, इस पर मेरा तफसीली बयान हुआ और फिर आखिर में इनाम जीतने वाले बच्चों को इनामात तकसीम किए गए और दुआ पर यह प्रोग्राम ख़त्म हुआ। मदरसा हलीमा सादिया लिल बनात एक छोटे से गाँव में बहुत प्यारा मदरसा है। जो हजरात इस मदरसे की मदद करना चाहते हैं, क्योंकि ये मदारिस गवर्नमेंट की भीख और खैरात पर नहीं चलते, जो हजरात इन मदारिस को जिंदा और बाकी रखना चाहते हैं ताकि बच्चों की ईमानी और इस्लामी तरबियत हो और कुछ मदद करना चाहते हैं, वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 9923223361 इस नंबर पर कॉल करें और जो कुछ मदद कर सकते हैं इसी नंबर पर गूगल पे, फोन पे और पेटीएम है, आप जरूर मदद करें। आखिरी बड़ी अफसोसनाक खबर गजा के हालात को लेकर आ रही है। जी हाँ, अक़वाम मुत्तहदा UNO का बड़ा बयान आया है। यारो ये खबरें पढ़ते पढ़ते मुझसे खुद बर्दाश्त नहीं होता है। बहुत बुरा हाल इजराइल ने किया है। दुनिया के तमाम इस्लामी मुल्क तो बेगैरत और बेशरम हैं, अल्लाह इनको बख्शेगा नहीं, अरबों को भी बख्शेगा नहीं, तुर्की को भी बख्शेगा नहीं अल्लाह, और किसी मुल्क को अल्लाह बख्शेगा नहीं। तमाम इस्लामी मुल्क मुजरिम हैं जो खामोश बैठे हैं और दुनिया के तमाम लोग भी पकड़े जाएंगे। जी हाँ, गजा के ताल्लुक से खबर आ रही है, अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि गजा बच्चों के लिए दुनिया की खतरनाक तरीन जगह बन गया है। जंगबंदी ना होने की सूरत में बीमारियों से कम उम्र बच्चों की मौतें बमबारी से होने वाली मौत से भी कई ज़्यादा हो रही है। UNO ने कहा कि हर बच्चा 10 हफ्तों से बमबारी को बर्दाश्त कर रहा है और यहाँ तक कह दिया कि एक भी बच्चा बच नहीं सकता, क्योंकि अब ये बच्चे शदीद बीमार हैं और इनको दवाएं भी नसीब नहीं हो रही है। और जितने बच्चे जिंदा है, किसी का पैर नहीं, किसी के हाथ नहीं, किसी का आधा धड़ नहीं, और इतने जबरदस्त अंदाज में वो जख्मी हैं कि अगर इनका इलाज ना हुआ तो इसमें से एक भी बच्चा नहीं बचेगा। अब तक तकरीबन 9000 बच्चे तो मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। और दुनिया के जालिमों, कातिलों, खड़े हो जाओ इजराइल के यहूदियों के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, वरना अल्लाह के दरबार में ऐ अरब के इमामों तुम्हारी भी बड़ी पकड़ होगी, क्योंकि तुमने अभी तक इजराइल और यहूदियों के खिलाफ जिहाद का ऐलान नहीं किया। तुमने अभी तक गजा और फलस्तीन की मदद का कोई भी साफ ऐलान नहीं किया।